अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الفاسقون وقال الله تبارك وتعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وقال تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وليبكي على خطيئتك صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، ذی الحج کا مہینہ ختم ہو رہا ہے. آنے والا مہینہ محرم الحرام کا ہے. اسلامی سال ذی الحجہ پر ختم ہو جاتا ہے اور نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے. اسی سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا تھا، لیکن حالات حاضرہ اور وقت کے تقاضے پر ذمہ داروں کی طرف سے چند باتیں عامت المسلمین کی خدمت کے اندر پیش کرنے کا کہا گیا. اسی لیے حالات حاضرہ پر چند باتیں ذکر کر دیتے ہیں. اخیر میں 10 منٹ شیخ الحدیث حضرت مولانا یعقوب صاحب سارودی نور اللہ مرکزہ کا کل انتقال ہوا. ان کے سلسلے میں تعزیتی کلمات ذکر کریں گے. بزرگوں، اللہ تمام تر مخلوقات کا ایک اکیلا تنہا خالق اور مالک ہے. پوری کائنات کی تمام تر مخلوقات کو حضرت انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے اور ساری مخلوق کو انسان کے مقابلے میں ادنا اور کمتر بنا دیا. انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے شرافت بخشی. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. کرامت، احسن تقویم، خاندان اور شعبہ والا بنا کر اللہ نے انسان کو عزت بخشی ہے. جو کائنات کی کسی بھی مخلوق کو وہ عزت حاصل نہیں جو انسان کو عزت حاصل ہے. چاند، سورج، سیارے، علمی مخلوقات، زمین تحت الثری تک کی مخلوقات، شمال سے جنوب، پورب سے پچھم،
फैली हुई कुल कायनात में सबसे अशरफ, सबसे अफजल, सबसे करामत और सबसे शराफत का मालिक इंसान। सारी मखलूक इंसान के मुकाबले में दूसरे नंबर की। इतनी शराफत और करामत जब अल्लाह ने बख्शी तो जिस्मी इंसानी की हिफाजत ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की चीज है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस शरीफुल नफ्स, हलीमुत तबा, कामिलुल अकल इंसान को पैदा करने के बाद खुद से खुद की जान को हलाक करने का अथॉरिटी नहीं दी। ये अल्लाह की अमानत है। अल्लाह उसका खालिक और मालिक, अल्लाह उसका निगरान और मुहाफिज। इस बॉडी में अल्लाह ताला ने एक चीज गोश्त, शिराइन और आसाम से पैदा की जिसका नाम जुबान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 3 चीजों से जुबान को बनाया, गोश्त, शिराइन और आसाब। ये एक हड्डी की शक्ल भी इख्तियार कर लेती है। यह नर्म मुलायम गोश्त भी है जिसमें इंसानी में अक्ल, दिल, बुलंद पाया कीमती चीजें हैं। इस तरह जुबान अल्लाह ताला ने पैदा की और जुबान की हलाकतें भी बहुत खतरनाक और जुबान से किए जाने वाले अमाल भी अजीम शान। बस इसी पर चंद बातें हालात हाजिरा के मुताबिक जिक्र कर देनी है। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई है, जिससे बहुत बड़ा खैर का काम किया जाता है। खालिक की कायनात की कुदरत के सबसे बड़े मज़ाहिर में अगर कुदरत कामिला का सबसे बड़ा मज़हर है इंसानी बॉडी में तो उसकी जुबान है। ये तो किसी गूंगे को पूछो कि कितनी बड़ी नेमत है जुबान, रात दिन इस्तेमाल होता है। अल्लाह ने 32 दांतों के बीच में उसको महफूज किया है। हर वक्त अंदर से मीठे पानी का चश्मा जारी है। वो हरकत करती है वर्क और ऑयल खुद ब खुद पैदा होता है। जितना वर्किंग इतना ऑयलिंग अंदर पैदा होता है, उसको मिलता है, वो हरकत में आती है। थोड़ी देर के लिए खुदा उसका ऑयल बंद कर दे तो आदम के बच्चे के होश ठिकाने लग जाए। थोड़ी देर के लिए खुदा उसकी वर्किंग बंद कर दे तो इंसान को धोले दिन में तारे नजर आ जाए। ये कुदरत का निजाम है। इस नेमत की कदर उसे नहीं, उसे ये भी पता नहीं कि इसके वर्क पर ऑयल जो लगता है उस पर मेरा 1 रुपया नहीं लगा। आपकी स्कूटर के लाइडन पिस्टन के दरमियान में ऑयलिंग के लिए हर 6 महीने 3 महीने जरूरत के बकदर इस्तेमाल पर ऑयल डालना पड़ता है, वरना लाइडन पिस्टन चिपक जाए। लेकिन कभी नहीं चिपकती है। उसकी तरफ भी उसके खिलाफ में बोलो तो भी चलने देता है, उसकी ताहत में बोलो तो भी चलाता है, उसकी बगावत में बोलो तो भी रोकता नहीं है। कितना बड़ा मुनइम हकीकी मोहसिन है हमारा अल्लाह। इस जुबान से जहां अच्छाइयां सरजद होती है, इसी जुबान से बुराइयां भी सरजद होती है। जुबान का सही इस्तेमाल दुनिया में सुकून दिलाता है, राहत दिलाता है, इज्जत दिलाता है, और जुबान का बेजा इस्तेमाल दुनिया में फजीलत और रुसवाई है और आखिरत में जहन्नम है। इसी जुबान से कलीमा ईमान बोलकर 60, 70, 80 बरस का बुढ़ापा है, और इसी जुबान से मौत के वक्त कलीमाए कुफरिया बोलकर नस्ली मुसलमान जहन्नमी बन जाता है। जुबान ही का तो रोल है, बहुत बड़ी नेमत है। इसी से अल्लाह की याद ताजा की जाती है, इसी से तिलावत की जाती है, इसी से जिक्र किया जाता है, इसी से नर्म कलामी और गुफ्तगू से दुश्मन, जालिम से जालिम, सख्त दिल इंसान को नर्म किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इसी जुबान से गीबत, इसी जुबान से
चुगली, इसी जुबान से तमस्खुर, इसी जुबान से झूठ, इसी जुबान से झूठी गवाही, इसी जुबान से बहतान, इसी जुबान से मुसलमान को बेआबरू करना और इसी जुबान से मुसलमान का ठट्ठा और मजाक उड़ाना। पहले ये समझो, कुल कायनात में अल्लाह और पैगंबर के बाद सबसे बड़ी इज्जत और करामत का मालिक इंसान है। वलकद कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ने चैलेंज किया, हमने इंसान को इज्जत दी। अल्लाह ने जिबिल्ली तौर पर शराफत और इज्जत दी है। अब शराफत और इज्जत पर कोई भी आंच आएगी तो जिस्मी इंसानी का तकादा है कि दफाइया करे, ये फितरत का तकादा है। करामत तुम्हारे बाप की नहीं है, करामत किसी मदरसे से नहीं मिली, करामत किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिली, इज्जत मालिक ने बख्शी है इंसान को। जब बेइज्जती होगी और जब इज्जत पर हमला होगा तो शराफत और तबीयती इंसानी तकादा करेगी कि बदला ले, क्योंकि मालिक की पैदा की हुई करामत है। वलकद कर्रमना बनी आदम, ये जुबान 32 दांतों के बीच में एक मीठा चश्मा बहाते हुए हर वक्त अपना काम करती है। इसीलिए फरमाया, जब ये बंदा झूठ बोलता है एक मर्तबा तो फरिश्ता उससे 1 मील दूर चला जाता है, और आदमी बराबर झूठ बोलता रहता है यहां तक कि वो फाजिर लिखा जाता है, और अगर तौबा नहीं करता तो बेईमानी की मौत मरता है। यही जुबान का गलत इस्तेमाल। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा से फरमाया, अला उखबिरुकुम बे अकबरिल कबाइर, ऐ मेरे सहाबा, बड़े बड़े गुनाहों में से बड़ा गुनाह मैं तुमको न बताऊं? सहाबा ने फरमाया, बला या रसूल अल्लाह। आका ने फरमाया, अल इशराकु बिल्लाह व हुकूकुल वालिदैन व शहादतु ज़ूर और कौल ज़ूर। आका तकिया लगा करके दीवार से बैठे हुए थे। जब आका ने साहबा से फरमाया, अला उखबिरुकुम बे अकबरिल कबाइर, बड़े बड़े गुनाहों से तुमको बाखबर करूं? फिर आपने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क, दूसरे नंबर में माँ बाप की नाफरमानी। आका ने तकिया छोड़ दिया, सीधे बैठ गए और फरमाया, कौल ज़ूर शहादत ज़ूर, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना। फमाज़ाल युकर्रिरुहा हत्ता कुल्ना लैतहु सकत। साहबा फरमाते हैं, नबी बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा, यहां तक कि हमारे दिल में हुआ कि अब चुप रह जावे तो बस। एहतमाम कितनी लंबी देर तक, अला कौल ज़ूर शहादत ज़ूर, अला कौल ज़ूर शहादत ज़ूर। मैं पूरा बयान बोलता रहूं, आप उगता जाएंगे। तो सहाबा सुनते सुनते कहने लगे कि अब बंद कर दे तो अच्छा है। कितना बोलते हैं नबी, यही बात ग़ीबत इसी जुबान से जारी होती है। आका ने मेराज की रात में देखा, आका पर कुछ लोग पेश किए गए, तांबे के नाखून थे बड़े बड़े उन इंसानों के, और अपने गालों को और अपनी छातियों को नोचते थे। आका ने पूछा, ये कौन? कहा, ये ग़ीबत करने वाले आपकी उम्मत के लोग हैं। आका के सामने पेश किए गए मुर्दार लाश खा रहे हैं, जहन्नम में मुर्दार लाश खाते हैं। आका ने पूछा, का ये कौन? तो कि आपकी उम्मत के वो लोग हैं, ये वो जहन्नमी लोग हैं जो अपने भाई की ग़ीबत किया करते थे। दुनिया में जिंदा भाई की जिस्म से गोश्त काट लेकर खाने का गुनाह है, और आखिरत में मरे हुए भाई की मैयत और उसकी लाश को खाने का, और वो खा रहे थे, मरे हुए भाई की लाश में से गोश्त खा रहे थे। ये ग़ीबत। तीसरी एक रिवायत, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में इन्हीं ग़ीबत करने वालों का हाल बता दिया। इससे भी खतरनाक,
इसीलिए आका ने फरमाया अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़ीना, अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़ीना, ज़िना के मुकाबले में गीबत खतरनाक। ज़िना इतना बड़ा गुनाह नहीं जितना बड़ा गुनाह गीबत। तो क्या ज़िना की छुट्टी है? छुट्टी उसकी भी नहीं, ये भी जहर है, ये भी जहर है। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात बराबर है, ज़िना गीबत ज़िना के मुकाबले में बड़ा गुनाह, लेकिन क्यों? वजह बयान कीजिए, अल्लाह के नबी ताकि समझ में आवे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई ज़िना अल्लाह का गुनाह है, अल्लाह माफ कर देगा, तौबा से माफ हो जाएगा। बदजुबानी बदकलामी ये इंसान के साथ हुई है, वो माफ कर दे तो माफ होगी, वो माफ न करे तो माफ नहीं होगी। दोनों में फर्क बयान किया, हुकूकुल इबाद है, ये हुकूकुल्लाह है। फिर फरमाया इसी रिवायत में रियाज का 1 पैसा 70 बुराई के दरवाजे खोलता है। વ્યાજ का 1 પૈસા રૂપિયાનું 20મું ભાગ, 20 પૈસા હોય તો રૂપિયો, 100 પૈસા હોય તો રૂપિયો બને, 100वां भाग, 1 रुपये का 100वां भाग ब्याज का बुराई के 70 दरवाजे खोलता है। और छोटे में छोटा दरवाजा ये है कि इस्लाम की हालत में अपनी सगी मां के साथ जीना करना। ये मैं आपको हदीस सुनाता हूं, किसी सहाबी का कौल नहीं सुनाता हूं, समझो। आका ने क्या फरमाया? ब्याज का 1 पैसा रुपये का 100वां भाग बुराई के 70 दरवाजे खोल देता है। किसी मुसलमान ने ब्याजू व्यवहार किया, 1 पैसे पर बुराई के 70 दरवाजे खुलेंगे। और 1 दरवाजे का कम से कम नुकसान आका ने कमजोर से कमजोर बताया, इस्लाम की हालत में अपनी सगी मां के साथ जीना करना। और फिर फरमाया, फिर आका ने फरमाया एक मुसलमान को बेआबरू करना इससे भी बड़ा गुनाह। मुसलमान की मजाक व्हाट्सएप पर हो रही है। कुरान कहता है ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरन मिनहुम वला निसाउन मिन निसाइन असा अन यकूनु खैरन मिनहुन्न। खबरदार ए ईमान वालों, मर्द मर्दों की ठट्ठे न उड़ाए, औरत औरत का ठट्ठा न उड़ाए। हो सकता है जिसकी मजाक की हो वो अल्लाह के यहां मजाक करने वाले के मुकाबले भी अच्छा हो। दोनों के बाबत फरमाया, देखो मजाक मत करो। अच्छा, हम मजाक क्यों करते हैं? उसको हकीर समझकर, उसको जलील समझकर। और एक मुसलमान को हकीर और जलील समझना काबे को गिरा देने के मुकाबले में भी बड़ा गुनाह है। इसलिए इब्न उमर फरमाया करते थे, वल्लाहि मा आदम व आदम हुर्मतिका इंदल्लाह वल मुमिन आदम हुर्मतन मिनका इंदल्लाह। और काबा तो किस कदर इज्जत का मालिक है। यूं देख कर काबे से कहा, अल्लाह ने तेरी इज्जत मान ली है, लेकिन मोमिन तुझसे भी इज्जत का मालिक है। ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, ये मुतकब्बिर है, ये घमंडी है जो अपने मुसलमान भाई की मजाक करता है। कोई भी मजाक करने वाला जिसने मुसलमान की मजाक की वो मुतकब्बिर है, घमंडी है। और घमंडी का ठिकाना जहन्नम है। मैं आपको कुरान और सुन्नत समझाता हूं, सलफ के अकवाल भी नहीं, उसमें तो लंबा मजमून है। क्या कोई घमंडी बनना मुतकब्बिर पसंद करेगा? अल-किब्रिया उरिदाई, अल्लाह फरमाते हैं तकब्बुर मेरी चादर है, जो मैं कोई ओढ़ने की कोशिश करेगा उसको जहन्नम में घसीट करके ले जाऊंगा। ये घमंडी है। कोई कौम किसी कौम की मजाक न करे, न मर्द न औरत। एक मर्तबा आका के घर में सैयदा आयशा के पास एक औरत आई थी, मसला पूछने किसी काम से। चली गई, आका तशरीफ लाए, उसका जाने का और आका का आने का। तो सैयदा आयशा सिद्दीका बीवी साहिबा हम मुसलमानों की मां से पूछा, आयशा वो कौन थी तारुफ के लिए? तो हजरत आयशा ने इशारे से बात कही थी, वो ठिंगनी औरत थी। हकीकत में कद उसका छोटा था, जैसे कोई कद का लंबा हो, कोई कद का छोटा हो।
तारुफ की गर्ज से कहा था कि वो ठींगनी औरत। पैगंबर ने फरमाया, आयशा तेरा ये कलीमा 7 समंदर में डाल दिया जाए, अल्लाह की कसम उसका पानी कड़वा करके रख दे। खाली तारुफ में खबरदार अपनी जुबान को कंट्रोल करो। इसीलिए सहाबा सवेरे सवेरे अबू बकर ज़बान निकालते थे बाहर यूं और कहते थे, अल्लाह की बंदी सलामत रहेगी, तू ठीक ठीक चलियो, तू सीधी चलेगी तो हम सब सलामत, और अगर तू टेढ़ी चली तो बोल करके 32 दांतों के अंदर चली जाएगी और हम सब मार खा जाएंगे। एक मजाक करने वाले ने मजाक कर दी और गांव और शहर की लड़ाई लड़ी। हुसैनाबाद और मांगरोल का वाकया व्हाट्सएप पर फरियाद की हद तक पहुंचा। सुलह समाधान, शरपसंद इंसानों ने देखा कि सुलह हो गई, बात बन गई, अब फिर से शरारत शुरू की। तो क्या इसी फजीतों के अंदर जिंदगी खत्म कर देनी है? कुरान और सुन्नत कोई चीज नहीं है, भूल तोड़ने की है। इसीलिए किसी ने खांड या मध या गुड़ ढोला, उस पर मक्खी बैठी, मक्खी पर हमला किया बिल्ली ने और बिल्ली को मार डाला। 2 खानदान में लड़ाई हुई, पूरा गांव में कत्ल का सिलसिला शुरू हुआ। इन्ना शर युब्दअ मिन अस्ल असगरिही, बड़ी लड़ाई उंगली लगाने से होती है। कोई उंगली लगाता है, फिर रफू चक्कर, और उसके बाद खानदानों के खानदान तबाह हो जाते हैं। हम जानिबेन से कहते हैं, भाई एक समाज है, पहली भूल अलग क्यों की आपने आपको? एक ही ताने और बाने से हम जुड़े हुए हैं। अरे कंगी के सारे दंदाने जब कंगी में फिट होंगे तो दातिया होगा। दातिये के सारे दंदाने दातिये में जोइट रहेंगे तो दातिया बनेगा। और दातिया उस वक्त जब दाने दंदाने यूं कहे कि मैं खुद मुस्तकिल हुकूमत का मालिक, तो दातिया सर में कैसे कौन करेगा? कौन दातिया रहेगा बाकी के जिससे कोई वाड़ वाड़ेंगे? मैं अपनी भाषा में समझाता हूं। इब्तिदाई भूल उंगली करने वाले की बड़ी भूल है। शरारत बहुत खतरनाक दर्जे की है। तेरी मजाक इस्लाम के दायरे में है, मजाक भी है। बाद लोग कहते हैं कि अकलू बदी पदी गुलाम बनी ने रेवानो, कौन तुझे गुलाम बनाता है आजाद बननी? प्यारे आका ने भी मजाक की है। ओ 2 कान वाले, तो क्या किसी के हर एक के 2 कान नहीं है? यह हकीकत पर मबनी कलाम है, तो उम्मत को मिजाज की भी तालीम दी। यह भी एक चीज है, इस तरह भी इस्लाम के अंदर रुखसत है। लेकिन किसी की इज्जत को हाथ लगाना, किसी की इज्जत को ठेस पहुंचाना अपनी जुबान से, अपनी कलम से, अपने इशारे से, वो सैयदा आयशा के इशारे पर पैगंबर ने क्या हिदायत फरमाई? तो क्या हम मुसलमान कौम के उलमा, कौम की इन बुराइयों पर कोई सरजनिश न करें या कुरान और सुन्नत ही न सुनावे? हम वक्त का तकादा था, कहा गया भाई व्हाट्सएप पर लिख देने से क्या होता है? कुरान और सुन्नत से कौम को समझाया जावे। कबाहतें ये है, जिसे मैंने कहा, एक मुसलमान को बेआबरू करना, अपनी सगी मां से मुंह काला करना और फिर 70 बुराई के दरवाजे खोल देता है। कोई किसी को बेआबरू न करे, कोई किसी की ठेकड़ी न उड़ाए। ठेकड़ी उड़ाने वाला घमंडी है, इसलिए कि वो अपने से दूसरे को जलील समझता है, और मुसलमान को जलील समझने वाला ये इंतहाई घमंडी कुत्ता है। उसकी कोई हैसियत इस्लाम में नहीं। यह इज्जत और अजमत की मालिक जात है मुसलमान, गैर भी हो। बल्कि एक औरत अंसारिया थी, एक अंसारिया औरत ऊंटनी पर सवार थी। आका उस काफिले में थे। इस औरत ने अपनी ऊंटनी, जो ऊंटनी उसका बोझ उठा रही है, अंसारिया औरत का, वो खुद ऊंटनी पर बैठेली है, इसका जात और राहिला ऊंटनी पर है, और ऊंटनी को लानतान की उसने, बुरा भला कहा। जैसे जानवर के मालिक जानवर को गालियां देते हैं, बुरा भला कहा। आका ने सुन लिया, फरमाया इसको नीचे उतारो, और एक जानवर को लानत की है। ये जानवर लानती हुआ, अब इस जानवर पर सवारी करना उसके लिए जायज नहीं,
और इस जानवर पर जाद और राहिला उठाना उसके लिए जायज नहीं। अंसारिया खातून को ऊँटनी से नीचे कर दिया। वो ऊँटनी लानत की हकदार थी, वो ऊँटनी लानत की हकदार थी, फिर भी लान करने के बाद पैगंबर ने उसको नीचे उतार दिया कि लानती ऊँटनी पर तेरे लिए सवारी जायज नहीं। साहबा फरमाते हैं हमने बाद में देखा उस ऊँटनी को भटकते भटकते, और अगर किसी पर लानत की वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी से कहा काफिर, किसी से कहा फासिक, किसी से कहा चोर, हकीकत में उसने चोरी भी की है। किसी से कहा जानी, हकीकत में उसने जिना भी किया है, लेकिन बाद में तौबा कर ली थी और अल्लाह से सुलह कर ली। ये कहने वाला उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक के सामने वाला काफिर नहीं है, तो ये उस वक्त तक नहीं मरेगा कहने वाला जब तक के काफिर न हो जाए। क्या समझा है इस्लाम को? उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक फासिक न हो जाए, उस वक्त तक नहीं मरेगा शरीफ ज्यादा जब तक कि किसी से मुंह काला न करवाए। ये इस्लाम है, ये मजहब है, इसकी ये पाकीज़ा तालीम है। बेबुनियाद चीजों पर वक्त बर्बाद करते हैं। ला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, बुरे लक़बों से किसी को मत पुकारो। ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान। ईमान के बाद फिस्क की बात करना बहुत बुरी बात है। एक बात तो ये थी, लिहाजा कोशिश करें इस बात की कि हम अपने अपने मामलात में, अपने घर में, अपने बच्चों में, अपनी बीवी में, अपने मस्तूरात में, अपने खानदान में, अपने कुंबे और कबीले में, अपने समाज में, अपनी बिरादरी में, गैर मुस्लिम भाइयों में, अपनी जानवरों तक के ऊपर भी लान तान न करे, बुरा भजक। मैंने जानवर की भी मिसाल दे दी, तो इंसान की करामत मैंने पहले बयान की। खैर मज़मून बहुत लंबा है, इसकी कोशिश करें। दूसरी बात, चर्चा भी इसका खत्म कर दे। अगर किसी ने व्हाट्सएप का गलत इस्तेमाल किया और स्क्रीनशॉट पर वो पकड़ा गया, तो कानूनी कार्रवाई उसके साथ सख्त में सख्त होगी, इसलिए कि इस्लाम के ढांचे को गिराने की कोशिश है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। गाली देना, जिसको गाली दी, मैंने कहा काफिर या फासिक कहा या गाली दी, अगर वो उस बात का मुर्तकिब है, हकीकत में वो गाली का लायक है और गाली उसको दी तो उसको लगेगी, नहीं है तो किसी की माँ, बहन, बेटी, खानदान में गाली दी तो अपनी बेटी के साथ ऐसा करने के लिए तैयार है, अपनी माँ के साथ ऐसा करने के लिए तैयार है, अपने खानदान की बेटियों के साथ ऐसा करने के लिए तैयार है। और आका कुछ फरमाते, एक आदमी निकालना के नबी इस्लाम ले आए, अल्लाह के नबी मुझे जीना की इजाजत दे दो। ये दरबार नबूवत में होने वाले वाकयात। साहबा बैठे हुए थे कम बखत, नबी का लाज नहीं रखता है, मस्जिद में बैठकर क्या कहता है। आका ने फरमाया खबरदार चुप रहो। इसको यहां किया, भाई तू जो करना चाहता है किसी की बेटी के साथ करना चाहता है, वो किसी की बेटी होगी। अच्छा ये तू तेरी बेटी के साथ करेगा? कहा नहीं। कहा क्या तू तेरी माँ के साथ? कहा नहीं। तेरी खाला के साथ? कहा नहीं। तेरी मुमानी के साथ? कहा नहीं। तो जिसके साथ तू इजाजत मांगता है वो किसी की बेटी नहीं होगी, वो किसी की माँ नहीं होगी, वो किसी की खाला नहीं होगी। तो जब तू अपने लिए पसंद नहीं कर सकता है तो दूसरे के लिए कोई दूसरा कैसे पसंद करेगा? फकत बा, अगर वो लानत का हकदार है तो लानत उस पर गई, और वो लानत का हकदार नहीं है तो शरीफ ज्यादा अपनी मां, बहन, बेटी की गाली दूसरे को दी, वो जब तक खुद के घर में खुद की बेटी और मां के साथ ऐसा नहीं करेगा तब तक मरेगा नहीं, और मौत पर ईमान खत्म अगर तौबा नहीं हुई। ये तयशुदा बात है। अहादीस के खुलासे में मैंने आपको समझाया, भाई समाज, इस्लामी समाज मुआशरा है, इसको इस्लाम के ताते के साथ जोड़ो, दंडी के कंगी के दंडाने मजबूत करो, दातिये के दाने तोड़ो मत। अगर कंगी के दंडाने तोड़ोगे तो फिर सर में बाल किससे बनाओगे, दाढ़ी के काल किससे बनाओगे? इस्लामी मुआशरा एक दातिये के दांते हैं और एक दातिये के दांते मजबूत करोगे
इस्लाम मजबूत होगा, ईमान मजबूत होगा। आइंदा बाकी बातें आइंदा में, लिहाजा व्हाट्सएप का गलत इस्तेमाल न हो। वैक्सीन का मसला चल रहा है, 4 महीने हो गए। ये कोई कानूनी चीज नहीं है, ये कोई मजहबी चीज नहीं है, यानी जायज नाजायज का मसला हो, शरीयत का ऐसा नहीं। समाज ने, बैतुल-माल ने मिलकर तमाम तर बिरादरियों के जिम्मेदारों को जोड़ा था, पटेलों को, उलमा को। ते नहीं हो सका, फिर ते हुआ। डॉक्टरों से राय ली जाए, डॉक्टरों से राय ली, वकाला से राय ली, फैसला ये हुआ। यानी सोचने में ये आया, ये कोई मजहबी चीज नहीं, जायज नाजायज हलाल हराम का मसला नहीं। दूसरे नंबर में देश का कायदा भी नहीं बना है। माफ पर तो कायदा बना, 1000 का कानून, 1000 का दंड, 50 का दंड, 500 का दंड, देश ने कायदा बना दिया। अगर से जालिमाना कायदा हो, लेकिन कायदा था। लेकिन वैक्सीन बांस की तरह कायदा नहीं है देश का। हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में तो गया भी नहीं। ये कायदा नहीं है, लेकिन फायदा इसका बताते हैं वो ये, जैसे हज उमरा का सफर फ्लाइट का कोई भी नहीं होगा किसी भी कंट्री का, बल्कि आज का ताजा रिपोर्ट दुबई का ये है, अमारत के जितने भी एयर हैं वो दुबई की अगर रस्सी होगी तो उसको अंदर एंटर होने देंगे। बड़ी ये कायदा कितना खतरनाक। वो सऊदी की रस्सी को भी कैंसल, खाली दुबई की, ओनली फॉर दुबई की रस्सी होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि रस्सियां वर्ल्ड में कामयाब नहीं हुई। अब भारत वाला भी ये कहेगा कि एयर इंडिया के अंदर इंडिया की रस्सी हो, वही चलेगा। फिर एक झगड़ा चल रहा है, लेकिन बहुत से ताजिरों को तकलीफ हो रही है, बहुत से सयाहीन को तकलीफ हो रही है। उम्रे का सफर भी नहीं करने देंगे, जैसे शराइत आपने देखे, बल्कि तो उनके तो वो शराइत है कि दुनिया में कौन हज उम्रा करेगा खुदा ही बेहतर जानता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। खास दुआ कर दी है ममलकत अरबिया सऊदिया के लिए कि हमारा कुब्बा खत्म हो रहा है, हमारा काबा और किबला मिट रहा है, रो रो कर दुआओं की जरूरत है। इतना फजीता हुआ है, एक लंबा मजमून है। लिहाजा कानून तो बन नहीं सका, लेकिन हर इंसान कानूनी दांव पेच हाथ में नहीं लेता है। अगर कोई लगाना चाहे लगा सकता है, न लगाना चाहे तो उसकी अपनी मर्जी की बात है। इसलिए कि न ये शरई चीज है, न ये कानूनी चीज है। शरई चीज हो तो दबाव डाल सकते हैं, कानूनी चीज हो तो मुतनब्बे कर सकते हैं। अलबत्ता सहूलियात फराहम करने के लिए, नफा खींचने के लिए, अपनी सहूलियात पूरी करने की गर्ज से अगर हम लेना चाहें तो शरअन कोई मुमानात भी नहीं है। तीसरी बात, दारुल उलूम कंथारिया के शेखुल हदीस हजरत अब्दस मौलाना मोहम्मद याकूब सारोदी, जिनको बहरीन, सऊदी, मक्का मुकर्रम